Standard 4 Subject EVS 1 Lesson number 2 Topic The interrelationship between living things जानदारों का बाहमी ताल्लुक Student, before beginning our lesson today, let me ask you a riddle. Think and be ready to answer. Let me first read a riddle for you. An age-old tree with a thick, strong trunk gives deep dark shade from the scorching sun, like an old man's beard with many strands. It has ropes for swinging from every branch. Can you guess which tree is it? Any guess, student? Yes, you are right. It's a banyan tree. A banyan tree is a widespread tree which gives deep dark shade to the passers-by and shelter to birds and animals. That is why it is said that trees are our best friend. Now let's begin with our lesson. The name of the lesson is Interrelationship between living things. जानदारों का बाहमी ताल्लुक. Firstly, I will explain you what is interrelationship. The way in which two or more things are connected with each other is called an interrelationship. जिस तरह दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती है उसको इंटररिलेशनशिप कहते हैं, यानी जानदारों का बाहमी ताल्लुक कहते हैं. There are many plants in our surrounding which are useful to us. Example, battlewind यानी पान, flame of forest यानी ढाक, fenugreek यानी मेथी, वसाका यानी अडुलसा, करी लीफ यानी क्रियापात जिसे आप कड़ी पत्ता भी कहते हैं. We are using this plant leaves in medicinal purpose. हम इन नबातात का इस्तेमाल दवाओं के तौर पर भी करते हैं. Now children, let us see how the needs of living things are met in their environment. बच्चों, देखते हैं किस तरह जानदारों की ज़रूरतें माहौल से पूरी होती हैं. We have many needs like food यानी ग़िज़ा, एयर यानी हवा, क्लोथ्स यानी लिबास, शेल्टर यानी मस्कन. फूड, वाटर, एयर, क्लोथ्स एंड शेल्टर. All these needs are met in our surrounding, but there is a differences in the needs of each kind of living things. Let's see the examples. The water that a mouse drinks in an entire day would not be enough for an elephant even at one time. दिन भर में चूहा जितना पानी पीता है उतने पानी से हाथी की एक वक्त की प्यास भी नहीं बुझ सकती. बच्चों, हमने देखा कि जानदारों की ज़रूरतें तो माहौल से ही पूरी होती है, लेकिन मुख्तलिफ जानदारों की ज़रूरतें मुख्तलिफ होती है. Let's see some other examples. Butterflies feed on the nectar of flowers. Can a frog do the same? A sheep eats the leaves of shrubs. Can a tiger do the same? A fish can breathe in water. But can a pigeon do that? Bulrushes grow in water. Can a lemon tree do so? बच्चों, इन मिसालों के ज़रिए हमने देखा कि मुख्तलिफ जानदारों की ज़रूरतें मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये ज़रूरतें माहौल से ही पूरी होती हैं. Now let's proceed to our next point is any type of living things will be found only where all its needs are fulfilled. हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती है वो वहीं पाए जाते हैं. Let's see the examples. Tiger stays in forest. It hides among the tall grass of grassland. Thus, deer, nilgai, and the bison
cannot spot him. These animals are its prey. Tiger easily feed on them. शिकार के लिए शेर घास में छुप जाता है। उसके जिस्म पर पट्टे की वजह से शिकार को शेर का पता नहीं चलता और वो उसका शिकार बन जाता है। टाइगर inhabits the hilly areas where it can take shelter in the caves and drink water from nearby water hole. तो देखा बच्चों, जहाँ ये तमाम सहूलतें पाई जाती है वहीं शेरों के ठिकाने होते हैं। Now proceed to another point, that is जानवर हमारे दोस्त. Animals are friend. We keep some animals with us to satisfy our needs. We get many things from animals such as milk, दूध, meat, गोश्त, अंडे, eggs. Some animals are useful for carrying burdens और ड्राइंग कार्ड्स. इसी तरह कुछ जानवर बोझ उठाने और गाड़ियाँ खींचने के काम आते हैं, जिस तरह आप इस तस्वीर में देख रहे हैं. कुत्ता घर की रखवाली करता है. Sheep give us wool. We make woolly clothes from wool. खेती बाड़ी जैसे सख्त काम करने के लिए इंसान बैलों की मदद लेता है. We love animal and animals too return our affection. Even the excreta. Excreta means animals dropping of domestic cattle is useful for making manure and fuel. Fuel मतलब जलाने की चीज़ें. गाँव में उपले को ईंधन के तौर पर और खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. Plants are friend. नबातात हमारे दोस्त. जिस तरह हमें जानवरों से मुख्तलिफ चीज़ें मिलती है, उसी तरह हमें नबातात से भी बहुत सारी चीज़ें हासिल होती है, जैसे कि अनाज, फूड ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स. नाउ लेट्स सी अर्बोरियल एनिमल यानी शजरी हैवानात. जो हैवानात दरख्तों पर रहते हैं उन्हें शजरी हैवानात कहते हैं, जैसे कि बंदर, स्क्वैरल यानी गिलहरी. दरख्तों पर रहने से उन्हें दुश्मनों से अपनी हिफाजत करना आसान हो जाता है. जानवर दरख्तों के फल खाकर अपना पेट भरते हैं. जिन दरख्तों के सहारे वो ज़िंदा रहते हैं, उन दरख्तों की वो गैर महसूस तरीके से मदद भी करते हैं. जैसे जानवर इधर उधर जाते हैं, उनके फासिद मादों से, यानी जिसे आप पॉटी भी कहते हैं, के ज़रिए फलों के बीज माहौल में हर तरफ फैल जाते हैं. इसलिए नई जगह पर दरख्त उगने में मदद मिलती है. परिंदे भी दरख्तों पर रहते हैं और फलों के बीज फैलाने में नबातात की मदद करते हैं. इस तरह नबातात और दूसरे हैवानात एक दूसरे की मदद करते हैं. An egret rides on a buffalo's back. Now let's see why it is so. Egret sit comfortably on the back of buffalo to eat the bugs that fly from the grass when these animals are walking. ये कीड़े खाते हैं. घास में काफ़ी कीड़े होते हैं जो बगले को घास में ठीक तरह नज़र नहीं आते, इसलिए बगला उन्हें पकड़ नहीं सकता. इसी घास में भैंस चरती है. चरते हुए वो कदम आगे बढ़ाती है. उसका पैर जहाँ पड़ता है, आसपास के कीड़े घबराकर उड़ते हैं. भैंस पर बैठा हुआ बगला उन्हें आसानी से पकड़कर खा जाता है. इस तरह इन दिस वे एनिमल हेल्प ईच अदर. नाउ लेट्स सी द सीजनल चेंजेस इन लिविंग थिंग्स. मौसम के लिहाज से जानदारों में होने वाली तब्दीलियाँ. हमारे मुल्क में 3 मौसम होते हैं. देयर आर 3 सीजन्स इन आवर कंट्री. रेनी बरसात. इन दिस सीजन वी यूज़ अम्ब्रेला, रेनकोट एक्सेट्रा. इन विच सीजन वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ क्लोथ? यस, यू आर राइट. इन विंटर. विंटर यानी सरमा का मौसम. समर गर्मा. गर्मा यानी गर्मी का मौसम.
इस मौसम में लोग गर्मी से बचने के लिए सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह इंसान पर तीनों मौसमों का असर होता है, उसी तरह दूसरे जानदारों पर भी होता है, जैसे कि जानवर और पेड़ पौधे। सरमा के मौसम को पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, क्योंकि सरमा में कई दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। Because many trees falling leaves, tree become empty without leaves. In Maharashtra, this season is also called Pangal. कुछ हैवानात के जिस्म पर बाल होते हैं, जिन्हें फरी एनिमल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, शिप यानी भेड़, खरगोश रैबिट। बिकॉज ऑफ फर, दीज एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन विंटर। जिस्म पर बाल होने की वजह से इन जानवरों की सर्दियों में हिफाजत होती है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आम के दरख्त पर फूल लगने की शुरुआत होती है। इन फूलों को मोर या बोर भी कहते हैं। आपने भी ये फूल देखे होंगे। इन समर द मार्केट इज़ फुल ऑफ मैंगोज इन महाराष्ट्र। द कोकण रीजन इज़ particularly famous for its mango. कोकण आम की पैदावार के लिए मशहूर है। गर्मा के मौसम में आम के साथ काजू यानी कैश्यू नट का भी मौसम होता है। Summer season and the rainy season start from June. In this time we get jackfruit, जामुन and करवंदा। बारिश के मौसम में कटहल, करवंदे और जामुन मिलने लगते हैं। बच्चों, आपको ये फल पसंद है ना? के मौसम में हर तरफ हरियाली छा जाती है और हमको एक खूबसूरत सी धनक आसमान में नज़र आती है, जिसे आप रैम्बो भी कहते हो। और हर तरफ बारिश होते ही मेंढक नज़र आते हैं। कभी कभी एक सुर में उनकी टर 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 सुनाई देती है। बरसात का मौसम किसानों के लिए बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि इस मौसम में किसान अपने खेतों में बीज बोते हैं। फार्मर आर सोइंग सीड इन देयर फार्म। तो बच्चों, ये लेसन आपको कैसा लगा? इसे इहादे के तौर पर एक बार फिर से पढ़िए।